Hello everybody, welcome to my channel. This is our own channel and it is EduEthics. So our next video, after this video, this is all about climate from geography. So after this video, let us talk something. So after this video, I'm going to upload another video and that is going to be a special video which is going to be on the quote, education is your ethics, right? So this is what our EduEthics want to provide you. That is EduEthics. Education is in your ethics. So friends, from a very long time we have been uploading video and this is from 2020 only. Now it's going to be the end of 2020 and we have some new plans, we have some new plannings and organization for the new year. So what I want to do for this channel in new year is I'm going to upload one video which is going to be, as I told you in this quote, where I'm going to tell you how to do studies, which is a very common thing which you can find anywhere. With this, I'm going to tell you that how you can ignite yourself for your studies. And one more thing which we are going to do in that video is going to be a complete surprise. We are not going to share that thing with you in this particular video or in any video. We are not going to share that surprise with you all. That's going to be in that video which you're going to see. So please see that video. Two things I have mentioned. The third thing is complete surprise, which is going to be one of the biggest surprise. Now yes, one more thing to tell you is I didn't remember the date. It is, I think, 4-5 days ago we got a appreciation letter, appreciation message from YouTube. So that was one of the first letter, I would say, a first appreciating letter to me, to our channel. So I was very surprised with that letter, because till now, yes, we have been uploading our videos. We are trying new technologies and trying new ways to upload videos to make even your education more easy, more comfortable, more funny, more interesting, whatever you can say. So that is what we are aiming to do. But the other thing is, in return, we are not getting as much subscribers as we want or as we are desiring to get. That is something which will increase gradually with time. Hope so God will give us this 2021 a big surprise with so many, at least 1000 subscribers. That is what I want, what our wishes are. But yes, that is all right. But that appreciating letter, it was ignite to our mind, to our heart, that now we have to do best. We have to give our best in our channel EduEthics, because we were thinking like, we are giving so much in YouTube in EduEthics, but we're not getting as much or as many subscribers as we wanted. So that was something which demotivated us, that we can't be good teachers, we can't teach well. Then what happened, that appreciating letter, which you can see, I will give you the link for that. I will try to give you the link. Otherwise we're going to share a screenshot, or we're going to make another video for that. This is our appreciating letter. Even our subscribers are going to be happy with that. We are so much happy with that. So that ignited us, our heart, our mind, that yes, we can do good for the country, for all our friends, for all our fellow beings who wanted to study and maybe they are not able to go to school, or even in this lockdown, in this circumstance, maybe their education is restricted. So we tried our best, we give our best, and we are going to give our best in this channel. So, and we are not going to stop till we think that yes, our satisfaction is there. हम तब तक वीडियो डालेंगे जब तक हमें नहीं लगेगा कि हमने अभी तक पूरा काम कर दिया. वी हैव टू डू वर्क. नॉट दिस वर्क इज ओनली मेकिंग आवर सब्सक्राइबर्स इंक्रीज. हमें इससे केवल सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे हैं. इवन all children, even of our age, all fellow beings are getting education at home with ease, with free of cost, right? So this is what our aim is, and this is not even our only aim.
not our aim only, this is the aim of our parents, our grandparents, good leaders of country. So they want Atmanirbhar Bharat, and we have to begin that. We have to put the base for that. We have to make a foundation, and we are the, putting the base for that. So that we can be strong. We can, move ahead together. We can be strong. We can make our country strong. So that is what we all want, right? So now let's get started with this beautiful, not a lecture, I would say. This is what my thoughts, my opinion is. So now let me start with the chapter. The name of the chapter is Climate. Before starting, let me choose the ink so that फालतू में समय वेस्ट ना हो. एंड आज एक इंक से ज़्यादा काम चलाना पड़ेगा क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी आई थिंक अ ह्यूज वीडियो, क्योंकि अभी तो इतना टाइम लग गया है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये बता दें हम आपको कि ऐसा वीडियो आने वाला है. आपको अप्रिसिएशन मिला है यूट्यूब की तरफ से, और हम चाहते हैं सब्सक्राइबर्स भी आगे बढ़ते रहें, सब लोग एजुकेशन को लेते रहें. तो क्लाइमेट चैप्टर का 2 वीडियोस इक्वल टू 1 आवर होता है हमेशा. यानी कि क्लाइमेट के मैंने 2 वीडियोस में 2 पार्ट लिए हैं क्लाइमेट चैप्टर के, तो वो 1 घंटा लगा लेते हैं, है ना. हमको बहुत समझना पड़ता है इस चैप्टर को, तो उस वजह से ज़्यादा समझेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा. यू हैव टू कोऑपरेट विद दैट. नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर क्लाइमेट. अभी जो क्लाइमेट चीज़ है ना, इस क्लाइमेट, वेदर और सीज़न, ये 3 चीज़ें हैं जो हमको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं. ऑल्दो हम इनके बारे में ज़्यादा बोलते ही नहीं है, लेकिन जब बोलते हैं गलत से बोलते हैं. जैसे कि मैंने बोला कि अभी का क्लाइमेट क्या है, या मैंने बोला अभी का वेदर क्या है. आई एम नॉट क्लियर विद दैट कि मैं वेदर बोलूँ या क्लाइमेट बोलूँ. सीज़न हम नहीं बोलते हैं क्योंकि हमें पता है कि सीज़न मंथली हम काउंट करते हैं, बट वेदर और क्लाइमेट में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. हम दोनों को मिक्स कर देते हैं. दे आर सिंगल थिंग हम सोचते हैं. हम बोल देते हैं कि सुबह का क्लाइमेट ऐसा था, शाम का ऐसा था, सुबह का मतलब दोपहर का ऐसा था, बट इट इज़ नॉट राइट. These 3 things are completely different. Then why we get confused with them? Because their element जिनसे ये बने हैं ये सेम है. अब किन से बने हैं क्या है वो सब बात की बात है. यहाँ पे मैं एक आपको शॉर्ट फॉर्म, एक तरह से एक डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में, यानी सबसे बड़े को सबसे पहले रखेंगे, फिर मिडिल में रखेंगे बीच वाला, थर्ड नंबर पे सबसे छोटा वाला रखेंगे. दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे बड़ा से सबसे छोटा, सबसे बड़े से शुरू करके एट द एंड वी आर गोइंग टू सबसे छोटा वाला. तो ये मैं प्रॉपर सीक्वेंस आपको यहाँ पे लिख के दे रही हूँ. यू हैव टू फॉलो दैट सीक्वेंस. और ये एक तरह से एक इंट्रोडक्शन होगा. इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे एक आइडिया लगेगा. ठीक है, मैं लिखती हूँ आपके लिए यहाँ पे. सबसे बड़ा है क्लाइमेट, बिगेस्ट वन. ठीक है, सबसे बड़ा है क्लाइमेट. फिर आता है सीजन्स, फिर आता है सीजन्स, और फिर आता है वेदर. अब important thing is what is climate, what is season, what is weather. I'm not going to tell you what it is or what is the definition of these 3 things are, but I'm going to tell you one short thing about 3 of them. That is climate होता है monthly count करने वाला. कुछ क्या मैं नहीं बता रही अभी. So it is yearly, sorry monthly नहीं, climate is yearly. क्लाइमेट हम ईयरली काउंट करते हैं. सीजन्स को हम मंथली काउंट करते हैं. सीजन्स का काउंट मंथली. और वेदर डे टू डे काउंट किए जाते हैं. डे टू डे दे आर काउंटिंग. क्या चीज़ है, क्या काउंट किया जाता है, अगर आपको ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा है सो यू हैव टू वेट फॉर दैट. मैं आपको एक बार इस चीज़ को समझा दूँ. जब भी मैं वेदर की बात कर रही हूँ, आई एम काउंटिंग डे टू डे, और आई एम टॉकिंग अबाउट डे टू डे. व्हाट डे टू डे, क्या चीज़ है ये डे टू डे, ये हम नहीं जानते अभी. सीजन हम बात कर रहे हैं मंथली, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना. हमारे ईयर कितने महीने का है, 12 महीने का. एंड इफ आई एम डिवाइडिंग माई दिस ईयर इन 3 सीजन्स, तो पहला सीजन
समर ले लिया, फिर विंटर, फिर मानसून, वॉट एवर, ठीक है। समर, मानसून, विंटर आपने 3 महीने ले लिए। ये 3 महीनों में मैंने कुछ काउंट किया। क्या काउंट किया? आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, उसको हमने सीजन बोला। और क्लाइमेट क्या हुआ? मैंने ईयरली काउंट किया, तो वो क्लाइमेट हुआ, ठीक है। तो क्लाइमेट सबसे बड़ी चीज़ थी। फिर मैं बीच में आई भाई, ईयर को मैंने तोड़ा, मंथ पे आ गई, मंथ को मैंने तोड़ा तोड़ा तोड़ा, है ना, फिर मैं डेज पे आ गई। तो ईयर सबसे बड़ा, ईयर जिसमें हम बात करते हैं क्लाइमेट की, फिर आता है मंथली, फिर आता है डे टू डे, ठीक है। ये होगा आपका पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। नाउ क्लाइमेट की डेफिनेशन जानते हैं, वेदर की डेफिनेशन जानते हैं, सीजन की डेफिनेशन जानते हैं। बिफोर दैट हम इंडिया के इस मैप को देख लेते हैं। ये मैप आपको ध्यान रहेगा। अब इस मैप में आप देखिए, यू आर गोइंग टू सी कि हमने इंडिया को डिफरेंट स्टेट्स में बांटा है, और इन सभी स्टेट में कुछ अपने अपने तरह का रिलीजन, अपने अपने तरीके का कल्चर फॉलो किया जाता है, राइट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्दर्न इंडिया, वी आर गोइंग टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर, रिलीजन। साउथ में अलग, हर जगह का अलग, इवन लैंग्वेज भी अलग है। बट हम कभी भी नहीं सोचते कि इन जगहों का क्लाइमेट कैसा होगा, ठीक है। इन जगहों का क्लाइमेट कैसा होगा, इंडिया का क्लाइमेट कैसा होगा। सो वी हैव डिवाइडेड दिस होल वर्ल्ड इनटू डिफरेंट लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर, देयर रेसेस, देयर स्किन कलर। बट हमने कभी ये सोचा है कि ज्योग्राफी में क्लाइमेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो आज हम इस क्लाइमेट को समझेंगे, और क्लाइमेट को समझते समय हमें अपने दिमाग को बिल्कुल मेडिटेटेड रखना है। बिफोर स्टार्टिंग on with this chapter, you have to keep yourself ready कि we are going to face many difficulties while understanding the chapter. We don't have to afraid of these difficulties. ये difficulties क्या हो सकती है? कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, या ये कोई शब्द समझ नहीं आ रहा है, अगर मेरे वीडियो में आपको वो वर्ड का मीनिंग नहीं मिला, या बाय चांस मैंने स्किप कर दिया, सो यू हैव Google it, because Google is something, Google Baba, we all use that Google Baba for many things, right? We have phone na, phone में हम गेम खेलते हैं, so why not to use, or why not to browse word meanings or something which is important for us, which can increase our marks, which can increase our knowledge, which can increase our education. So go through the Google and just search or browse for those things which you're not able to find in any video. So Google आपको सब चीज़ें बता देता है। Now what are the 3 basic element of natural environment of any place? जब मैं किसी कंट्री की बात करूँ, मैं वर्ल्ड में किसी भी जगह की बात करूँ, तो मैं वहाँ पे 3 चीज़ें हैं ज्योग्राफी के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, जो समझती हूँ। जैसे इंडिया की बात करते हैं, हमने इंडिया में फर्स्ट चैप्टर वाज इंट्रोडक्शन, ठीक है, अबाउट इंडिया, कि इंडिया का साइज कितना है, इंडिया कितने से कितने लैटिट्यूड के बीच में लाई करता है, एंड सो ऑन। फिर मैं सेकेंड चैप्टर पे आई, दैट वाज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सेकेंड चैप्टर था फिजिकल एक सेकेंड, मैंने स्पेलिंग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, लैंडफॉर्म वाला चैप्टर था। फिर लैंडफॉर्म में हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया देखी, हमने हिमालयन रीजन की बात की, प्लेटूज की बात की, है ना, हमने बात करी बहुत सारी और चीज़ों की, प्लेन्स की बात की, नॉर्दर्न प्लेन हमने देखे, ठीक है। तो बहुत सारा कुछ हमने डिस्कस किया इन चैप्टर लैंडफॉर्म। फिर हम लैंडफॉर्म से आगे बढ़ गए, और फिर हम आए ड्रेनेज पे। ये चैप्टर डिलीट हो गया था सिलेबस से, हमने नहीं पढ़ा इसको, ये चैप्टर डिलीट हो गया था, तो उस वजह से हमने नहीं पढ़ा था इसको, ठीक है। लेकिन लेकिन मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि ऑल द चैप्टर तो हमने नहीं करा, लेकिन हमको थोड़ा आइडिया तो लगना चाहिए। सो इन दिस चैप्टर विच इज़ डिलीटेड, विच वी इवन डेंट हैव रेड अबाउट, सो इसमें मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको। क्या था? ड्रेनेज में हमने रिवर्स, अगर हम पढ़ते तो दैट वाज ऑल अबाउट
रिवर सिस्टम, दैट वाज ऑल अबाउट रिवर सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री के रिवर सिस्टम के बारे में हम पढ़ते। अब इसमें क्या होता है, देखो हमारा जो कंट्री है इसको हमने दो रीजन से बांट रखा है। जो नदर्न रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जहाँ पे हिमालयास पड़ते हैं, सो हमने जो नदर्न रीजन में रिवर्स बहती हैं उनको हिमालयन रिवर्स बोल दिया। और ये है आपका पेनिनसुला, ये है आपका पेनिनसुला। तो यहाँ पे जो रिवर्स बहती हैं हमने उनको पेनिनसुलर रिवर्स बोल दिया। चलो भाई, हम इधर से इधर आए और अब हम जा रहे हैं इधर। अब हम जा रहे हैं क्लाइमेट की तरफ। ये थर्ड बेसिक एलिमेंट है ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एनी प्लेस, क्लाइमेट। लैंड फॉर्म हुआ, ड्रेनेज हुआ और अब है क्लाइमेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्लाइमेट विदाउट फर्दर ड्यू। अब क्लाइमेट जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ भाई यही आती है, किसी से पढ़ोगे जिसको नॉलेज नहीं है क्लाइमेट या वेदर की तो वो कहेगा देखो बेटा क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट और वेदर एक चीज़ है। अब आप कहेंगे हाँ वेदर तो पता है ना, वो जो दिन प्रतिदिन बदलाव आता है, न्यूज़ में भी आता है, आज सुबह का टेम्परेचर ये, शाम का टेम्परेचर ये, ऐसा वैसा। सो आपको यही समझ में आएगा कि क्लाइमेट और वेदर आर द सेम थिंग्स। यू आर गोइंग टू मिंगल टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग चीज़ों को आप मिक्स कर रहे हैं। सो ये ज़रूरी है कि आप देखो वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर है, सो दैट आपसे अगर कोई ये कहे कि क्लाइमेट और वेदर आर द सेम थिंग, यू आर गोइंग टू से क्लाइमेट एंड वेदर आर डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो चलो देख लेते हैं सबसे पहले इसको भाई। एक सेकेंड। वेदर रेफर्स टू स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वेदर रेफर्स टू स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि अगर मैं आज दिन की बात करूँ, आज पूरे डे की बात करूँ, तो आज सुबह जब मैं उठी थी 8 o'clock तो टेम्परेचर जो था इट वॉज अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ था। दोपहरी तक वो टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, और रात में अब 9-10 बज गए हैं तो टेम्परेचर हो गया है अगेन कुछ ऐसा 7 डिग्री सेल्सियस या 8 डिग्री सेल्सियस। सो ये पूरे दिन में मैंने जितनी बार टेम्परेचर को नोट डाउन किया वो वेरी कर रहा था। सो वेदर एक ऐसा स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर है जो वेरी करता है, दिन प्रतिदिन तो करता ही है बल्कि वो समय के अंतराल में भी करता है। इन अ पर्टिकुलर डे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर डे, देन आई कैन से कि उस दिन में भी 10 बार वेदर में बदलाव, टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक कंडीशन में बदलाव आया था, जिसे मैं वेदर बोलूँगी। सो ये मेरे पास एक दिन है, मैंने 3 बार टेम्परेचर को नोट किया। ये मेरा पेन बिल्कुल ढंग से वर्क नहीं कर रहा है इसलिए मुझे इरेजर करने दो। हाँ, सो ये एक पूरा दिन है, मैंने 3 बार टेम्परेचर कंडीशंस को नोट डाउन किया और तीनों बार दे वर वेरिंग। सो ये जो है इसे हम कहेंगे वेदर। सो वेदर रेफर्स टू स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय पर, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। दे फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे, एक पूरे दिन में भी कर सकते हैं वो फ्लक्चुएट। तो अभी जो मैंने आपको इन वेरी फर्स्ट स्लाइड ये वाली थी ना, मैंने बताया था वेदर क्या है, डे टू डे। व्हाट डे टू डे? डे टू डे चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। सीजन क्या है? मंथली चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। क्लाइमेट ईयरली चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ओके, सो नाउ दे फ्लक्चुएट मतलब बदलते रहते हैं बहुत जल्दी जल्दी। तो वेदर किसी दिन का हो सकता है। वो वेदर जो है जब मैं उसको 30 साल या 30 ईयर्स जैसे हम कहते हैं या बहुत सारे सालों तक काउंट करती जाऊं, और काउंट करने के बाद मैं उनका सम करूं और मैं ये फाइंड करूं कि कौन सा जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, ठीक है। सो वो क्लाइमेट कहलाएगा। मेरी कंट्री का जो मेजॉरिटी वेदर बहुत सारे सालों तक वो क्लाइमेट है। दैट मीन्स क्लाइमेट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन। मैंने 30 सालों तक जो वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस था किसी लार्ज एरिया का नोट डाउन किया, तो वो जो मैंने नोट डाउन किया डेटा, मैंने उसके आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने क्लाइमेट बोला। सो क्लाइमेट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, मैंने बहुत सारे वेदर कंडीशंस का सम टोटल किया एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका मेजर जो करते हैं इट इज ऑलमोस्ट आफ्टर 30 ईयर्स। ओके,
अब क्लाइमेट समझ में आ गया है। नाउ सीजन्स, अब क्या होता है कि वेदर भी समझ में आ जाता है, क्लाइमेट भी समझ में आ जाता है। अब हम सीजन्स भूल जाएंगे। अब हम कहेंगे 2-3 महीनों के बाद कि 3 महीने में ऐसा वेदर होता है, 4 महीने का ऐसा वेदर होता है। समर एक वेदर है, अगर समर इज अ वेदर बोलेंगे तो वो 0 मार्क्स होगी। समर इज अ सीजन, विंटर इज अ सीजन। So on basis of generalized monthly atmospheric condition, monthly atmospheric condition यानी अगर हम एक साल को देखें तो उसमें 12 महीने हैं। अगर उन 12 महीनों को मैं तीन महीनों में डिवाइड कर दूं, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, तो 3 महीने हमारे 3-4 सीजन्स ही होते हैं। कोई सीजन थोड़े छोटे हो जाते हैं तो वो हम 4 सीजन कह देते हैं। और तो हमारे पास 3 सीजन आ जाते हैं, विंटर, समर और रेनी सीजन। सो ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन सच एज विंटर, समर और रेनी सीजन। यहाँ पे अब हमने 6 सीजन्स लिखे। आप कहेंगे कि हर एक महीने में अलग अलग सीजन होता है, ऐसा नहीं होता है। 3-3 महीने हम लेते हैं, 3 महीने समर रहेगी इस तरह से। लेकिन कई बार उन 3 महीनों में भी ऐसा हो जाता है कि एक महीना कोई अलग तरीके का छोटा मोटा सीजन आ जाता है, जैसे स्प्रिंग आ जाता है या ऑटम भी आ जाता है। तो स्प्रिंग, समर, मॉनसून, ऑटम। फिर यहाँ पे क्या है, प्री विंटर, विंटर। इन्होंने तो 6 ऐसे ले लिए हैं, आपको उतना 6 को नहीं देखना है। आपका सिंपल समर होता है, विंटर होता है और रेनी सीजन होता है, दैट्स इट। एलिमेंट्स ऑफ वेदर, सीजन्स एंड क्लाइमेट आर सेम। यहाँ आ जाती है बात भाई कि हम कंफ्यूज क्यों होते हैं। इतनी आसान चीज़ें और हम इतने बड़े हो गए हैं फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप गलत कंफ्यूज नहीं होते हैं, पढ़ना ज़रूरी था, पढ़ लिया है। हम कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि इनके जो एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। एलिमेंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 एलिमेंट लिखे हैं। ये 5 एलिमेंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इन एलिमेंट्स की वजह से हम कंफ्यूज होते हैं वेदर, सीजन और क्लाइमेट में, क्योंकि ये सेम है। ठीक है, इनके जो एलिमेंट है वो क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पहला है। अरे क्या हो गया भाई, एक सेकंड। ये क्या हो गया है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ये है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे, देखो वेदर हो या सीजन हो या क्लाइमेट हो, हम इन सब में किसको मेजर कर रहे हैं, हम इसमें वेदर को ही तो टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं ना, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को मेजर कर रहे हैं, विंड्स को मेजर कर रहे हैं। विंड्स को कैसे मेजर कर रहे हैं, अब देखिए मेरी स्लाइड में हल्का सा दिक्कत आ रहा है, बट जो मैं बता रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा। सो विंड्स को हम कैसे मेजर करते हैं, विंड को मेजर क्यों कर रहे हैं हम इसमें, क्योंकि विंड का जो फ्लो होता है वो भी सीजन को डिटरमाइन करता है। कैसे, मैं आपको बाद में बताऊंगी इन अपकमिंग स्लाइड्स, यू गोइंग टू नो दैट एज वेल। ह्यूमिडिटी है और उसके बाद हमारे पास प्रेसिपिटेशन है यानी बारिश है। तो ये आपके 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं वेदर को, सीजन को और क्लाइमेट को। लेकिन अब ये जो 5 हैं इनको आपको दिमाग में रखना है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, या व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ वेदर, सीजन एंड क्लाइमेट के लिए। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो इनके बारे में कम ही पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट के। तो वेदर और सीजन का एंड यहीं पे हो जाता है। अब आ जाता है क्लाइमेट। जब मैं बात कर रही हूँ इंडिया की, मैं अपने भारत की बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे जो बुक का नाम है वो है कंटेम्प्ररी इंडिया, तो मैं अपने इंडिया की ही बात करूँगी। पूरी बुक में हम ड्रेनेज पढ़ेंगे इंडिया का, लैंडफॉर्म पढ़ चुके हैं इंडिया का और क्लाइमेट पढ़ रहे हैं इंडिया का। सो अब मैं इंडिया की बात करूँ तो व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया है, तो इंडिया के पास कौन से तरह का क्लाइमेट है। सो क्लाइमेट जो इंडिया का है वो है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। यू कैन सी द मैप हियर, जो हाईलाइटेड रीजन है, ब्लू हल्का सा हाईलाइटेड जो रीजन है, इस रीजन में हमारा पड़ता है, आता है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, इस रीजन में, केवल इंडिया में ही मॉनसून नहीं है, ये जो इक्वेटर के पास के इलाके हैं यहाँ पे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलती है। मैं इंक चेंज कर लेती हूँ क्योंकि जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो ब्लैक बैकग्राउंड में है, तो आपको दिक्कत ना आए इस वजह से। क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप का है। जो ये वर्ड है, नाउ प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन द वर्ड मॉनसून। हम हिंदी में कहते हैं मौसम, तो ये जो वर्ड है मॉनसून, ये एक अरेबिक वर्ड मौसम से डिराइव्ड है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है, एक्चुअल मीनिंग होता है सीजन।
तो इंडिया में या इंडिया के आसपास जो इक्वेटोरियल रीजन में जो कंट्रीज पड़ती हैं वहाँ पे सीजन्स देखे जाते हैं, मंथ में सीजन्स आते हैं। तो उस टाइप के क्लाइमेट को जहाँ पे सीजन्स रिपीट होते हैं उसे हम मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। मॉनसून रेफर्स टू सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ईयर। जैसे ही नया सीजन आता है विंड का डायरेक्शन हो जाता है मतलब उल्टा, तो विंड्स यहाँ पे फॉल्स विंड है आप कह सकते हो, जो बदलू हैं, सीजन्स के साथ बदलती रहती हैं, ठीक है। मॉनसून आर एक्सपीरियंस्ड इन ट्रॉपिकल एरिया दैट इज बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ। तो अगर मैं ये इक्वेटर को लेती हूँ, इक्वेटर से मैं यहाँ पे बोल देती हूँ दिस इज 20 नॉर्थ और यहीं पे ये 20 साउथ है। तो ये जो रीजन मैं कह रही हूँ ये आपका आ जाता है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट वाले इलाके में, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर हम एशिया में बात करें तो दिस इज योर एशिया, ये आपका एशिया आ जाता है, दिस इज योर एशिया। अब इस एशिया में, ये एशिया नहीं इतना बड़ा है एशिया, तो यहाँ से पूरा एशिया है अपना। अब इस एशिया में ये जो इंडिया है ना, इंडिया कहाँ पड़ता है? इंडिया इज इन साउथ ऑफ एशिया। इंडिया कहाँ पे? साउथ ऑफ एशिया में है। तो जब इंडिया साउथ ऑफ एशिया में आता है, यहाँ पे मेंशन है कि एशिया में अगर हम बात करें तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है कहाँ पर? साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में। सो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन एशिया इज फाउंड वेयर? इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। एंड इंडिया भी आपका साउथ एशिया में ही तो आ रहा है ना। So that is why India, China, they experiences what? Monsoon type of climate. तो साउथ या साउथ ईस्ट एशिया में कौन से टाइप का क्लाइमेट आ रहा है? मॉनसून टाइप का क्लाइमेट आ रहा है, ठीक है। नाउ चेंजेस इन वेदर कंडीशंस विद इन अ कंट्री डिस्पाइट ऑफ सेम काइंड ऑफ क्लाइमेट। देखो पूरे इंडिया में सेम तरीके का क्लाइमेट है। अगर मैं कहीं पे भी जाऊँ तो मैं यही कहूँगी कि वी हैव मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अगर आप यहाँ पे मतलब जिस भी स्टेट के हो, आप कहीं के भी हो सकते हो, इंडिया में कहीं के भी हो सकते हो ना, तो जिस भी स्टेट में आप हो तो ये सबके लिए अप्लाइड है। चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में हो, आप मुंबई में हो, कि वी हैव मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। दिस इज द यूनिटी अगेन, हमारे पास मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। अगर आप इंडिया के नॉर्थ में हो, आप इंडिया के साउथ में हो, आप इंडिया के ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, आपके यहाँ क्लाइमेट मॉनसून नहीं होगा क्योंकि आप सब इंडियंस हो, इंडिया में रहते हो। लेकिन फिर भी अगर मैं ये कहूँ कि पूरे देश में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो जम्मू कश्मीर वाला कहेगा यार हमारे यहाँ तो नहीं होती, बहुत कम होती है, बर्फ़ पड़ती है। साउथ में मुंबई वाला कहेगा हमारे यहाँ तो अच्छी खासी बारिश हो जाती है, बहुत ह्यूमिडिटी रहती है। ईस्ट वाला कहेगा बड़ा ठंडा मौसम रहता है, बहुत अच्छी ह्यूमिडिटी भी रहती है ना, बारिश बहुत अच्छी वाली होती है, पेड़ पौधे भी बहुत सारे हैं। ह्यूमिडिटी तो कमी होती है पर पेड़ बहुत सारे हैं, नदियाँ बहुत सारी हैं। वेस्ट में राजस्थान वाले भाई साहब कहेंगे कि हमारे तो बारिश बिल्कुल नहीं होती, पसीने ज़रूर छूटते हैं, है ना, कैमल में बैठ के हम सब डेजर्ट पे जाते हैं। सो इंडिया में क्लाइमेट एक है लेकिन वेदर अलग है। वेदर क्या होता है? डे टू डे फिनोमिना होता है, हमने ये पढ़ लिया। डे टू डे चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ये होता है। फ्लक्चुएट इवन विद इन द डे, हमने ये भी पढ़ लिया। तो मैं ये कैसे कह सकती हूँ, जैसे मैं मान लीजिए मैं बात करती हूँ दिल्ली में, ठीक है, मैं दिल्ली में हूँ अभी, और मैं दिल्ली में बैठ कर के बात कर रही हूँ केरला में बैठे किसी व्यक्ति से, तो मैं कहूँगी कि हमारे यहाँ तो बहुत ठंडी पड़ रही है अभी। वो कहेगा कि हमारे यहाँ तो अभी अच्छा खासा ह्यूमिडिटी वाला, गर्मी वाला बारिश हो रहा है ना, गर्मी बारिश हो रही है। तो हमारी एक कंट्री में क्लाइमेट तो हम सब कहेंगे केरला वाला भी मॉनसून है। अगर आपका फ्रेंड केरला में वो पूछता है कि यार कल एग्जाम में मुझे आज ये बता दे कि इंडिया हैज़ व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट या वी हैव व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट, सो वी आर गोइंग टू से मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। बट अगर वो आपसे पूछ रहा है कि अच्छा आज अपने यहाँ का क्या टेम्परेचर है, क्या वेदर है, तो अगर आप ये कहते हो कि समर आपके यहाँ तो गर्मी है और वो कहता है कि उसके यहाँ तो सर्दी है ना, कुछ भी हो सकता है। तो वेदर फ्लक्चुएट वेरी ऑफनली एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वेदर, इट इज इन अ वेरी स्मॉल एरिया।
But when I'm talking about climate, it is a large area. So in India we can observe different weather conditions in every part. इंडिया के आप साउथ में जाते हो तो आपको ह्यूमिडिटी मिलती है, नॉर्थ में जाते हो तो या तो आपको ड्राई रीजन मिलेगा या आपको डेजर्ट रीजन मिलेगा, लाइक लेह लद्दाख डेजर्ट हो गया, राजस्थान में आपका थार डेजर्ट हो गया, या कहीं आपको बहुत बारिश मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आपको मिल सकते हैं वेदर कंडीशंस में इन इवन अ कंट्री एज वेल, बट क्लाइमेट इज गोइंग टू बी सेम इन द कंट्री। In India, we can observe different weather conditions in every part. For example, अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की और प्रेसिपिटेशन की, ये टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन दो बेसिक एलिमेंट है विच डिटरमाइन वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो मैं बात कर रही हूँ इस समय पर टेम्परेचर की और प्रेसिपिटेशन की। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर इन समर, टेम्परेचर की बात कर रही हूँ मैं, समर्स में राजस्थान में पहुंच जाता है इट इज 50 डिग्री सेल्सियस। वेयरएज अगर मैं बात करूँ पहलगाम की, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, तो वहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है इन दैट सेम समर सीजन ओनली। ठीक है, सो समर्स में राजस्थान 50 डिग्री सेल्सियस, वेयरएज पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर इज 20 डिग्री सेल्सियस ओनली। विंटर्स में बात करूँ एट नाइट तो द्रास विच इज इन जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ का टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। एंड अगर मैं बात करूँ तिरुवनंतपुरम की विच इज़ इन केरला, यहाँ पे टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस ही रह सकता है। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है वेदर कंडीशंस की इन अ कंट्री। अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, अगर मैं बात करूँ कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ये भी वैरी करती है इन इनसाइड द कंट्री, विद इन द कंट्री, रीजन टू रीजन में अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन में कितनी बारिश हो रही है वो भी वैरी करती है। अगर मैं हिमालयास की बात करूँ तो वहाँ पे आपको बारिश नहीं मिलती है, वहाँ पे केवल और केवल स्नोफॉल मिलती है। सो स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू हिमालयन रीजन ओनली। You cannot, you're not going to find this snowfall in Rajasthan or in south or in east. That is only, snowfall is only restricted to Himalayan region, जहाँ पे हिमालयास फैले हैं, वहाँ पे सर्दियों के समय पर बारिशों के टाइम पे बारिश ना होकर के स्नोफॉल हो जाती है। Whereas it rains over rest of the country, और उस समय पर केरला में बारिश हो रही होती है। एनुअल प्रेसिपिटेशन जो हमारे होती है उसके अमाउंट में कितना वेरिएशन है ये यहाँ पे आप देखेंगे। मेघालय में 400 सेंटीमीटर की, इतनी 400 सेंटीमीटर इज टू मच, ओके, बहुत सारा वहाँ पे 400 सेंटीमीटर का ड्रॉप्स गिरते हैं ऑफ द रेन ड्रॉप्स जो गिरते हैं इन मेघालय। वेरएज अगर मैं बात करती हूँ राजस्थान की या लद्दाख की, तो ये डेजर्ट इलाकों में केवल 10 सेंटीमीटर्स की बारिश ही होती है। Most part of country receives rainfall from June to September. जून से सितंबर में हमारे रेनफॉल होती है। उस समय तमिलनाडु में नहीं हो रही होती है, तमिलनाडु में तो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे हो जाती है। सो कितना वेरिएशन है वेदर कंडीशंस का इवन विद इन अ कंट्री, राइट? नाउ why does temperature variation in coastal region is less than the land region? अभी हमको मैप को देखना है इधर। We can see over here that हमारा जो साउदर्न इंडिया है, जो साउथ में पड़ता है, वहाँ पर ओशन बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज हैं, ठीक है। सो हेयर वी हैव अ लॉट ऑफ वाटर, खूब सारा पानी है भाई, ठीक है, इतना सारा पानी है। तो यहाँ पर इधर लिखा है कि जो टेम्परेचर का वेरिएशन है कोस्टल रीजन में इज लेस देन द लैंड रीजन। ऐसा क्यों है? द रीजन इज, इसमें एक कंसेप्ट आता है, एक प्रॉपर्टी आती है बेसिकली लैंड एंड वाटर की। जो ज़मीन होती है, लैंड होती है, इसकी एक क्वालिटी होती है कि क्विकली अडेप्ट्स द टेम्परेचर। दैट मीन्स अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा तो लैंड, ज़मीन गर्म होने में ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगाती है। अगर आपका एटमॉस्फेयर ठंडा है, टेम्परेचर कूल है, तो ज़मीन ठंडा होने में बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगाती है। लेकिन पानी भाई साहब टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि गर्म होना है या ठंडा होना है। सो जिस समय पर आपके गर्मी हो रही होती है, लैंड क्विकली हीट अप, बहुत जल्दी लैंड हीट अप हो जाता है। वाटर समझता है गर्म होना है मुझको, तो वो धीरे धीरे गर्म होता है। सो वाटर टेक्स टाइम टू गेट हीटेड अप। Whereas if we are talking about in winter season,
सो सेम फिनोमेना होता है, लैंड बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है क्योंकि वहां पर लैंड का ये प्रॉपर्टी है, इट अडेप्ट्स द टेम्परेचर वेरी क्विकली। वेरस पानी समझता है कि अभी तो गर्म था, अब ठंडा होना है भाई, तो चलो आलसियों की तरह वो फिर ठंडा होता है, जल्दी धीरे धीरे ठंडा होता है। सो फिर पानी धीरे धीरे ठंडा होगा। उस समय पर जब पानी ठंडा हो रहा होगा, हल्का हल्का सा गर्म है और हल्का हल्का सा ठंडा है, उस समय पर लैंड ने पूरी तरह से अपने को ठंडा कर लिया होगा। सो लैंड क्विकली, बहुत जल्दी ठंडा या गर्म होता है, whereas water is lazy, वो ठंडे से गर्म होने में या गर्म से ठंडे होने में takes a lot of time. So that is why जो हमारे इंटीरियर एशिया है, इंटीरियर एशिया में आपका इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट भी आ जाता है, उस जगह पर आपको दिखेगा कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होते हैं, बहुत जल्दी ठंडा या बहुत जल्दी गर्म। अगर मैं बात करूं, दिल्ली में तो बहुत गर्मी पड़ती है और ठंड में बहुत ठंडी हो जाती है। सेम एज इन राजस्थान, डेजर्ट इलाका है तो वहाँ पे तो रेतीला, रेत, मिट्टी, ज़मीन यही है, तो वहाँ पे बहुत जल्दी ठंड होती है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में गर्मी हो जाती है। लेकिन कोस्टल रीजन की बात करूँ, मुंबई, केरला, इन रीजन की, तमिलनाडु, उड़ीसा, तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर बॉडी से सराउंडेड ये इलाके हैं, यहाँ पर वाटर इन्फ्लुएंस है, तो वाटर इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंगली वाटर प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे। दैट मीन्स पानी जल्दी गर्म नहीं होता है, पानी लेट धीरे धीरे गर्म होता है, तो ये इलाके धीरे धीरे गर्म हो रहे होते हैं जब तक सर्दी भाई साहब भी आ जाते हैं। तो जैसी सर्दी आ गई, अब इनको फिर ठंडा होना पड़ेगा, फिर ये धीरे धीरे ठंडे होते हैं, तो ये ठंडे गर्म के बीच में फंसे रह जाते हैं। दैट इज वाई इन इलाकों में होता है मॉडरेटिंग इफेक्ट, यानी कि जब ये गर्मी आती है तो लैंड जल्द से गर्म हो जाती है, लेकिन जो वाटर है वो लेजी होता है, तो वाटर क्या करता है, वो धीरे 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 गर्म हो रहा होता है, टेक्स टाइम टू बिकम हीटेड अप, एंड जैसे जैसे ये गर्म हो रहा होता है, सीजन बदल जाता है, विंटर आ जाती है, फिर लैंड तो जल्दी से ठंडी हो गई, पानी अभी भी धीरे 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 ठंडा हो रहा होता है। सो यहाँ पे ये होता है, इस वजह से यहाँ पे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहता है। सो कॉन्टिनेंटैलिटी कंसेप्ट आता है, दैट कॉन्टिनेंटैलिटी का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। This is due to the continentality. It means that as we go far from water bodies, we experience extreme weather conditions, that is weather hot during summer, very cold during winters. That is why interior India have extreme hot या extreme cold conditions, whereas it is always moderating influence या moderating climate in the coastal region. तो ये जो moderate वेदर कंडीशन है, ये आपको केवल और केवल कोस्टल रीजन के पास दिखेंगी। अगर हम इंटीरियर एशिया की बात करें तो वहाँ पे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं है। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मॉडरेटिंग कंडीशन, वो मॉडरेटिंग कंडीशन आपको कोस्टल रीजन में ही मिलेगा। कोस्टल रीजन में क्या होता है, पानी है, पानी धीरे गर्म और धीरे ठंडा होता है, और लैंड ऑलवेज विन, वो जल्दी गर्म या जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। हम दुनिया में किसी भी जगह की बात कर ले, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो इन पाँच 1 2 3 4 5 6 चीज़ों के आधार पे कंट्रोल है। अगर ये चीज़ मिस आउट हो जाएगी तो क्लाइमेट वुड नॉट बी अंडर कंट्रोल। सो ये 6 चीज़ें कौन सी हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सी, दैट इज कॉन्टिनेंटैलिटी, प्रेशर एंड विंड, ओशन करंट, लैटिट्यूड, रिलीफ एंड ऑल्टीट्यूड। अब इनको हम एक एक करके फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, आई हैव हियर द बुक, आई हैव पुट इट विद मी, सो आई एम गोइंग टू रीड दीज कंसेप्ट्स फॉर यू, सो दैट ऐसा ना हो कि वो मिस हो जाए। मैंने इनको नोट नहीं किया, आई थिंक नहीं किया है, नोट नहीं किया है, डायग्राम फॉर्म में यहाँ पे लगा रखा है, इसको भी समझा दूँगी, पहले लिखा हुआ समझा देती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है लैटिट्यूड। अब इमेज में देखिए, you can see in this image, एक सेकंड, इस इमेज में मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ लैटिट्यूड समझाया है, कंसेप्ट ऑफ लैटिट्यूड समझाया है। लेट मी टेक ब्लैक इंक। ठीक है, here I have explained you the concept of latitude. ना देखो बुक में क्या लिखी है बात, बुक को ध्यान से पढ़ेंगे हम।
ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, amount of solar energy received varies according to the latitude. As a result, air temperature generally decreases from equator towards the pole. ठीक है, देखते हैं हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर. ये है हमारे सन. सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है इक्वेटर पे. इक्वेटर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर. द अपर पार्ट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न पार्ट इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर. सो इक्वेटर की तरफ पर डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है, मोर कंसंट्रेशन है, एक इलाके पर ज्यादा सनलाइट पड़ रही है. बट व्हेन आई एम गोइंग टू द frigid zone, temperate zone, amount of heat energy received it decreases. पोल्स पर कम हीट पहुंच रही है. साउदर्न पोल हो या नॉर्दर्न पोल हो, कम एनर्जी जो है, कम हीट जो है वो पहुंच रही है. जो लाइट है या जो सनलाइट है वो कंसंट्रेटेड कम हो रही है. इट इज डिफ्यूजिंग, फैल रही है. इट इज स्प्रेडिंग आउट. ठीक है. सो जहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन है हीट की, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है. जहाँ पे कम कंसंट्रेशन है हीट की, वहाँ पर सर्दी ज़्यादा है, जिसको हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं. तो लैटिट्यूड यहीं तक था. कर्वेचर ऑफ द अर्थ कर्व है. अगर अर्थ एक स्क्वायर होती तो दिक्कत कम आती, में भी ट्रायंगल होती तो कम आती. सर्कल है, ज़्यादा सर्कल भी क्या है, जॉइंट्स शेप है इसकी. तो जॉइंट शेप की वजह से क्या होता है कि ऊपर की तरफ कम हीट एनर्जी पहुंच पाती है. नीचे की तरफ जो एकदम सेंटर पे जो बल्ज आउट वाला हिस्सा है, वहाँ पे बहुत आराम से इक्वेटर पे हीट एनर्जी पहुंच पाती है. सो ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, कर्वेचर की वजह से जो सोलर एनर्जी है विच इज़ रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड. एज अ रिजल्ट, जैसे जैसे हम हायर ऑल्टीट्यूड में या अपर पार्ट में जाते जाते हैं, अर्थ के जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है. ठीक है. सो टेम्परेचर यूजुअली डिक्रीजेस. ठीक है, एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल. डिक्रीज होता है यानी ज़्यादा से कम होता है. तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम कहाँ पे होगा, पोल्स की तरफ होगा. पोल्स पे टेम्परेचर इज माइनस, इक्वेटर में माइनस तो कभी होता ही नहीं. इट इज 50 डिग्री सेल्सियस और अराउंड दैट. सो अब यहाँ पे हमारा लैटिट्यूड का जो कंसेप्ट है, इट इज completely crystal clear to us. Now let's move ahead and now let's talk about altitude. अब हम altitude को पढ़ेंगे. बुक में क्या लिखा है, बात को समझ लेते हैं. As one goes from the surface of the earth to higher altitude, the atmosphere becomes less dense and temperature decreases. ठीक है. Hills are therefore cool during the summers. तो जैसे जैसे हम सरफेस ऑफ द अर्थ से, ये सरफेस ऑफ अर्थ है. ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ है जिसे हम सी लेवल भी कहते हैं. ठीक है, ग्राउंड लेवल, सी लेवल. तो ये जो सी लेवल से है ना, सी लेवल यानी जो सी है, सी के नीचे का जो ज़मीन है, उस ज़मीन से अगर हम नापें, जितना हम ऊपर जाते जाएंगे तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती जाएगी, टेम्परेचर भी कम होता जाएगा. और जब टेम्परेचर कम हो, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो, तो वो इलाका, वो रीजन में क्या बन जाता है, उस रीजन में, उस जगह पे कोल्ड कंडीशंस, ठंडा जगह वो बन जाता है. सो दैट इज़ वाई समर्स में जो ये आपके हायर एल्टीट्यूड हैं ठंडे होते हैं. सो यहाँ पे ये आपको कंसेप्ट था जो बताया गया था हाई ऑल्टीट्यूड. ओके, नाउ वी हैव. ठीक है, तो हायर ऑल्टीट्यूड, लेस डेंस एटमॉस्फेयर एंड लो टेम्परेचर. ठीक है, लोअर ऑल्टीट्यूड, हाई डेंसिटी टेम्परेचर एंड व्हाट इज हाई डेंसिटी एटमॉस्फेयर और हाई टेम्परेचर. नाउ प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ये आपका तीसरा फैक्टर आता है जिसको मैंने इस वाली स्लाइड पे नहीं शो किया है, विच इज़ ओवर हेयर. सो इसको एक सेकेंड, ये वाला इमेज तो यहाँ पे भी है और ये वाला इमेज यहाँ पे भी है, तो हमको अभी इधर फोकस करना है. एक सेकेंड.
प्रेशर एंड विंड सिस्टम, और तो उस पर पूरा अलग टॉपिक मैंने बना रखा है, इसमें एंड पे आएगा। मैं आपको ये बता देती हूँ कि जहाँ पर हवा की डेंसिटी कम होती है, जहाँ पे लो प्रेशर होता है, जहाँ पे लो प्रेशर होता है, जहाँ पे हवा की डेंसिटी कम होती है, वहाँ पे लो प्रेशर इलाके में हमारा बनता है, जहाँ पे हवा की डेंसिटी कम होती है, जहाँ हवा फैल जाती है, वहाँ पे हमारा हॉट वेदर कंडीशन होता है। ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ हाई प्रेशर की, तो वहाँ पर जो हवा होती है वो डेंस होती है, और उधर हमारा बनता है कोल्ड रीजन, वहाँ हमारा बनता है कोल्ड रीजन। लो प्रेशर एरिया जहाँ पे हवा फैल जाती है, गर्म पानी में हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स फैले हुए होते हैं। आप गर्म पानी में इंक डालोगे, इंक जल्दी जल्दी फैल जाएगी। उसी तरह से अगर आप ठंडे पानी में इंक डालोगे तो वो लेट पूरे पानी में मिक्स होगी। अगर आप गर्म पानी में चीनी डालोगे तो वो जल्दी घुलेगी, ठंडे पानी में डालोगे तो लेट घुलेगी। क्यों? क्योंकि गर्म पानी में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत मतलब बहुत दूर दूर होते हैं, फैले हुए होते हैं गर्म पानी में, वेराज ठंडे पानी में पार्टिकल्स बहुत कंसंट्रेटेड होते हैं, तो वहाँ डिफ्यूजन स्लो होता है। सो हॉट जहाँ पे हम बात करते हैं तो वहाँ पे लो प्रेशर, कोल्ड जहाँ पे हम बात करते हैं वहाँ हाई प्रेशर, मॉलिक्यूल्स आर डेंस देयर। ठीक है। अब हम बात करते हैं वार्म करंट और कोल्ड करंट की, तो बाद में करेंगे भाई। अभी हम बात करेंगे इस वाले डायग्राम की। देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम सुबह की। इधर इन दिस केस हम इसी प्रेशर एंड विंड सिस्टम को लेके चल रहे हैं, सुबह की बात कर रहे हैं। सुबह क्या होता है, लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, तो एयर ऊपर उठ जाती है, एयर राइजेज अप। ठीक है, ऊपर उठती नहीं है एयर, वार्म एयर राइजेस नहीं, वार्म एयर स्प्रेड, वार्म एयर स्प्रेड। ठीक है, एयर राइजेस अप का मतलब है वार्म एयर स्प्रेड, वो फैल जाती है, जगह जगह फैल जाती है। अब ये एयर फैल गई, जब ये एयर फैल गई तो यहाँ पे आपका लो प्रेशर बना, यहाँ पे आपका लो प्रेशर बना। देखो इसको बहुत ध्यान से समझना है, मैं ऐसे समझाऊंगी तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, मुझे एक बार ढंग से आपको ये पूरा कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। जब मैं इस वाली स्लाइड पे आती हूँ, ये कंसेप्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का कंसेप्ट देखो, यहाँ GIF आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो दान दे सकता है गरीबों को। तो जहाँ पे हाई प्रेशर है वहां पे एयर, वहां से एयर जाती है टुवर्ड्स द लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर जहाँ पे होगा वहाँ कोल्ड बनेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बर्फ जमाई है, बर्फ क्या है, वहाँ बर्फ ज़्यादा भारी होगी। ठीक है, बर्फ ज़्यादा भारी होगी। अगर हम बर्फ का एग्जाम्पल भी नहीं ले तो आप किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हो कि यू नो अबाउट दिस। जहाँ हम बात करते हैं हाई प्रेशर की, वहाँ पे होता है आपका कोल्ड, ठंडा। लो प्रेशर की जगह पे होता है हॉट। जहाँ पे है हाई प्रेशर वहाँ होगी, ओह मैंने ब्लैक इंक ले रखी है, मैं एक ऐसी इंक ले लेती हूँ जो आप हर स्लाइड में वर्क करेगी। जहाँ पे हमारा हाई प्रेशर है वहाँ पे होगी कोल्ड, ठंडी। जहाँ पे लो प्रेशर है वहाँ पे होगा हॉट, गर्मी। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी नियर टू ईच अदर, वेयर एज लो प्रेशर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फैल जाते हैं। अब जो कोल्ड एयर होती है भारी होती है ना, क्योंकि हाई प्रेशर है, कोल्ड एयर है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पास पास है, तो वो नीचे बैठ जाती है, सिंक डाउन, नीचे बैठ जाती है, बहुत मोटी हो गई है, उसे खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो बैठ गई है। हॉट एयर फ्लेक्सिबल है, फैल चुकी है, राइजेस अप, तो वो क्योंकि लो प्रेशर है तो वो फैल जाती है। हॉट एयर लो प्रेशर दैट इज व्हाई इट राइजेस अप, कोल्ड एयर हाई प्रेशर दैट इज व्हाई इट सिंक्स डाउन। अब देखो, अब जब हाई प्रेशर बना जमीन पर, हाई प्रेशर में इसको छोटा छोटा लिखती हूँ, एक सेकेंड। हाई प्रेशर बना,
कहाँ पर? ज़मीन पर। हाई प्रेशर बना, ये ज़मीन है, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर बन गया, ये कोल्ड लेयर थी। और जो दूसरी साइड है, यहाँ पे कोल्ड लेयर की बात कर रहे हैं हम, ये कोल्ड लेयर है। अगर हम यहाँ पे बात करें हम हॉट एयर की, हॉट एयर की, ये कोल्ड एयर थी, ये हॉट एयर है, सॉरी। एक सेकेंड रेज करना पड़ेगा हल्का सा। एक सेकेंड वेट करना पड़ेगा इसमें हल्का सा, कई बार ना बहुत ज़्यादा लिखा नहीं जाते तो इसमें दिक्कत आ जाती है। ये है लैंड, ठीक है। यहाँ पे थी आपकी कोल्ड लेयर, यह है कोल्ड लेयर। मैं सी ए लिख देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देती हूँ एच ए। यहाँ पे है हॉट एयर, कंफ्यूज नहीं होना है, एच ए का मतलब है हॉट एयर, ठीक है। तो ये है सी ए, यहाँ पे है एच ए। अब कोल्ड एयर की जगह पे क्या होता है, बहुत भारी, यहाँ पे होता है हाई प्रेशर। यहाँ पे हमारे पास होता है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे होते हैं, हवा के मॉलिक्यूल्स बहुत बहुत नीचे होते हैं एकदम, दे आर एट द सर्फेस, दे आर एट द सर्फेस लेवल, वेरी एट द वेरी सर्फेस लेवल। तो यहाँ पे नीचे होने की वजह से वो नीचे हाई कंसंट्रेशन बना देते हैं, और नीचे आपका हाई प्रेशर एरिया बनता है, ठीक है। कोल्ड लेयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी पैक्ड टुगेदर, दैट इज व्हाई दे सिंक डाउन, एंड व्हेन दे सिंक डाउन जो सरफेस लेवल पे होता है हाई प्रेशर बनता है। इसको फिर समझो, मैंने यहाँ पे बताया था हाई प्रेशर इज इक्वल टू कोल्ड एयर एंड लो प्रेशर इज इक्वल टू हॉट एयर, कोल्ड एयर इज इक्वल टू सिंक डाउन, हॉट एयर इक्वल टू राइजेस अप। इस चीज़ को हल्का सा और अच्छे से समझते हैं हम। जब कोल्ड एयर होगी तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होंगे, जब वो कंसनट्रेटेड होंगे तो वो नीचे बैठेंगे ना। अब जब वो नीचे बैठ गए तो ग्राउंड लेवल पे क्या बना, ग्राउंड लेवल पे बना आपका हाई प्रेशर। दूसरी तरफ मैं अगर बात करती हूँ तो वहाँ पर है हॉट एयर। हॉट एयर के मॉलिक्यूल स्प्रेड जल्दी हो जाते हैं एंड दे इजीली राइजेस अप। हाई वो कम वहाँ पे डेंसिटी है, लो प्रेशर है ना वहाँ पे, तो लो प्रेशर के केस में जो मॉलिक्यूल्स है वो आराम से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि वो हल्के होते हैं, भारी नहीं होते, कॉम्पैक्ट नहीं होते। अब ये नीचे बैठे हुए हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर उठ गए हैं, हवा में डोल रहे हैं इधर, ठीक है। और यहाँ पे बन जाता है लो प्रेशर एरिया, यहाँ बन जाता है लो प्रेशर एरिया। प्रॉपर्टी है ये तो भाई हाई प्रेशर की कि इट मूव्स टुवर्ड्स लो प्रेशर। तो यहाँ पे अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो ग्राउंड लेवल को मैं और हल्का सा ग्राउंड लेवल को ग्रीन बना देते हैं। ये ग्राउंड है ना आपका, ग्राउंड है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जो एयर है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। ग्राउंड लेवल पे हाई प्रेशर कहाँ पे है, कोल्ड एयर की तरफ है, तो यहाँ से वो मूव करेगी यहाँ पर, यहाँ से वो मूव करेगी लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से मूव करेगी वो लो प्रेशर की तरफ। लो प्रेशर मतलब हॉट एयर, लो प्रेशर मतलब हॉट एयर या हॉट रीजन। लो प्रेशर का मतलब होता है हॉट एयर या हॉट रीजन। तो वो उस जगह पे मूव करेगी जहाँ पे क्या होगा, हॉट एयर होगी या हॉट मतलब गर्म हवा होगी, है ना, हॉट एयर होगी, हीटेड अप वाला इलाका होगा, ठीक है। सो हमने देख लिया हाई प्रेशर से मूवमेंट होता है लो प्रेशर की तरफ एयर का। तो दिन के समय क्या होता है, अब यहाँ पे हम बना देते हैं अच्छा सा दिन, वो यहाँ पे हम अच्छा सा दिन बना देते हैं। ये है सन, ये है आपका वॉट, यहाँ पे मैं बना देती हूँ ये है आपका लैंड, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी तरफ है आपका वाटर। कलर्स थोड़ा यूज़ करेंगे, चलो मैंने सोचा नहीं करेंगे बट कलर्स ही समझ में आता है ना टॉपिक। तो अब मैंने लैंड की तरफ लिख देना है, यहाँ पे लैंड है, लिखा ही नहीं जा रहा है इससे, लैंड है ये, यहाँ पे है वाटर, लैंड है यहाँ पे और यहाँ पे है वाटर। तो अब क्या हुआ,
लैंड मैंने बताई थी एक लैंड और एयर की प्रॉपर्टी, लैंड और वाटर की प्रॉपर्टी, कि लैंड बहुत जल्दी गर्म होता है या ठंडा होता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, वाटर धीरे धीरे ठंडा या गर्म होगा। तो अभी सुबह हुई है, लैंड को समझ में आ गया कि सन आ गया है, अब वो गर्म हो गई। वाटर लेजी था, वो लेट उठा, रात से लेट उठा, तो अब उसने समझा ही नहीं कि भाई सुबह हो गया है, उसको गर्म होना है, वो अभी भी हल्का सा ठंडा है या मॉडरेटिंग है। तो यहाँ पे इस जगह पर इन कंपैरिजन ऑफ दिस जगह, मतलब वाटर की जगह पर इन कंपैरिजन विद लैंड वाली जगह, वाटर की जगह पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा, हल्का सा वो सॉरी हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे होगा हाई प्रेशर। क्यों हाई प्रेशर होगा, क्योंकि अभी अभी वो रात से उठा है ना, और रात में तो क्या हो रहा था, रात में तो ठंडी थी, तो वो वाटर एंड लैंड दोनों ठंडे हो रहे थे रात में, लेकिन सुबह हुई तो लैंड जल्दी से गर्म हो गया। एज यूजुअल वाटर थोड़ा टाइम लेगा, तो लैंड बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्म था, और इस वजह से उसकी एयर तो ऊपर उठ गई थी, लैंड की एयर तो ऊपर उठ गई थी। अब जब लैंड की एयर ऊपर उठ गई है, तो यहाँ पर ज़मीन के इलाके में बन गया है लो प्रेशर। इन दिस केस जो आपकी हवाएं चलेंगी वो कहाँ से कहाँ चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी कि वाटर से लैंड की तरफ चलेंगी। फिर हम फिनोमिना समझते हैं। सूरज आया, लैंड गर्म हुआ, वाटर अभी थोड़ा कम गर्म था, मॉडरेट था, इन कंपैरिजन ऑफ वाटर वो थोड़ा मतलब इन कंपैरिजन ऑफ लैंड वाटर थोड़ा ठंडा भी था। तो वाटर में हल्का हाई प्रेशर था, लैंड में लो प्रेशर था। तो अब एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो वो वाटर से लैंड की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई भी थी इधर इस डायग्राम में, कि जो वार्म एयर है वो राइज अप हुई और उसने क्या बना दिए। फिर देखो, सबसे पहले तो लैंड जो था वो गर्म था। लैंड जब गर्म था और जो ये अपना क्या कहते हैं वाटर था ये ठंडा था। इन कंपैरिजन ऑफ द लैंड वाटर थोड़ा ठंडा था। तो वाटर में हाई प्रेशर बना ग्राउंड लेवल पे और लैंड में क्या बना, लो प्रेशर बना। तो वाटर कहाँ से कहाँ मतलब जो एयर है कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। सो हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी ना। अब हाई प्रेशर आपका यहाँ पे था वाटर की तरफ, तो वाटर से एयर विल मूव टू द लैंड, एंड व्हेन एयर विल मूव फ्रॉम वाटर टू लैंड इट विल कैरी मॉइस्चर। तो अब जो वार्म एयर है वो ऊपर उठेगी ना, वो मॉइस्चर के साथ ऊपर उठेगी। मॉइस्चर के साथ जब वो ऊपर उठेगी तो वो फील करेगी कि आई एम वेरी हैवी नाउ, वो क्लाउड्स फॉर्म कर देगी, क्योंकि ये पानी की वाले इलाके से आई है ना ब्रीजेस, तो ये क्लाउड्स फॉर्म करेगी। अब जो कूल एयर है, अब ये जो क्या कहते हैं हमारे क्लाउड्स हैं, दे विल मूव, एंड व्हेन दे विल मूव ये भारी हैं, तो ये भारी होने की वजह से क्या कर देंगे, कूल एयर है मूव कर देगी अगेन टूवर्ड्स द वाटर। इतना यहाँ का फिनोमिना आपको समझ में आना चाहिए। मुझे लगता है कि इधर तक का तो आ ही गया होगा। देखो इतना आना चाहिए, दिस मच फिनोमिना इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड टिल नाउ। ठीक है, ये सब आप अभी भूल जाए, ये सब आप भूल जाओ। ठीक है, हाई प्रेशर वाली एयर सिंक डाउन होगी, लो प्रेशर वाली एयर उड़ेगी। अब जब हाई प्रेशर वाली एयर सिंक डाउन होगी, हाई प्रेशर वाली एयर सिंक डाउन होगी तो वो नीचे इकट्ठी होती जाएगी ना, और लो प्रेशर वाली तरफ में वो ऊपर उठेगी। जब वो ऊपर उठेगी अगर उसमें मॉइस्चर है तो वो पहाड़ मतलब जो क्या कहते हैं क्लाउड्स भी बना देगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये होती हैं सी ब्रीजेस। जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है वाटर की तरफ, वहाँ से जो एयर विल मूव टू द लैंड। नाइट में उल्टा हो जाता है। नाइट में क्या होता है, लैंड को पता है कि उसे जल्दी ठंडा होना है, अब वो जल्दी ठंडी हो गई। वाटर अभी दिन था, दिन में उसको समझ लेट में ही आया था कि भाई गर्मी हो गई, इसे गर्म होना है, वो गर्म हुआ और अब तो फिर रात ही हो गई, तो लैंड तो ठंडी हो गई थी। अब जो हाई प्रेशर है वो इस तरफ बनेगा, लो प्रेशर इस तरफ बनेगा। यहाँ पे होगा हाई प्रेशर, यहाँ पे होगा लो प्रेशर। तो अब फ्रॉम इन दिस फिनोमेना एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, फ्रॉम लैंड टू सी, एंड इसे हम कहेंगे लैंड ब्रीज सिंपल। ठीक है,
यहाँ पे लिखा है ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है इसको जानने का भी ज़रूरत नहीं है, हम जान लेते हैं ये कि एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ से एयर विल मूव टू दी लो प्रेशर वाला इलाका। ठीक है, अब एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन वाटर, वाटर गेट हीटेड अप स्लोअर देन। अब ये जो 2 पॉइंट थे ना, यहाँ तक का तो क्लियर हो ही गया है हमको। ये जो 3 पॉइंट हैं ये सारे, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, दीज 3 पॉइंट्स। ओके, एक सेकेंड में एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये आपको एक कंसेप्ट है, ये कुछ पॉइंट है जो आगे आपके काम आएंगे। एयर का मूवमेंट ध्यान रखना है, जैसे भगवत गीता या रामायण में आप सुनते हैं ना, बड़े कोड वर्ड्स में बात होती है, तो एक लेक्चर आप समझने मैं आपको दे रही हूँ कि हवा का मूवमेंट, ये याद रखना, हवा का मूवमेंट लो प्रेशर, हवा का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। दूसरा पॉइंट याद रखना कि पानी जो है ये टाइम लेता है ठंडा या गर्म होने में इन कंपैरिजन विद द लैंड। सो वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन लैंड, वाटर गेट्स हीटेड अप स्लोअर देन लैंड। ठीक है, पानी लेजी है इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, सेकेंड डायग्राम को हम देख लेते हैं। डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, सो यू हैव टू कीप इन माइंड सम ऑफ द डायग्राम्स। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है हाई प्रेशर और यहाँ पे है लो प्रेशर। तो एयर मूव कर रही है यहाँ से जाते हुए यहाँ पर वो जा रही है, फ्रॉम हाई प्रेशर वो लो प्रेशर की तरफ जा रही है। यहाँ पे भी 2 डायग्राम्स थे जो मैंने आपको बताए थे। लो प्रेशर वार्म एयर है, इट राइजेज अप, कूल एयर है, इट इज हाई प्रेशर क्रिएटिंग अ हाई प्रेशर एंड इन दैट केस एयर विल सिंक। हाई प्रेशर जहाँ पे होगा तो वहाँ पे एयर नीचे आएगी और जहाँ लो प्रेशर होगा वहाँ पे एयर ऊपर की तरफ जाएगी, विल फॉर्म द क्लाउड्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, फैक्टर्स जो इंडिया का क्लाइमेट भी अफेक्ट करते हैं, इनको अब हम देख लेते हैं। अभी तक हमने देखी फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, नाउ इट कम्स की फैक्टर्स जो इंडिया का क्लाइमेट अफेक्ट करते हो। सो व्हाट आर दे आर लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड एंड प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ठीक है, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड और प्रेशर एंड विंड सिस्टम है। ठीक है, अच्छा सा कलर कौन सा लूँ मैं, ये वाला ले लेती हूँ, बट मेरे को लगता है आगे मेरी स्लाइड्स में कोई भी रेड नहीं है ना, रेड इज़ बेटर टू टेक। हाँ, सो लैटिट्यूड अभी हमने पढ़ा था यार वैसे लैटिट्यूड को, लेकिन अभी हम आगे भी इसके बारे में देखेंगे कि व्हाट इज़ लैटिट्यूड। ठीक है, फिर हम देखेंगे ऑल्टीट्यूड, फिर हम देखेंगे प्रेशर एंड विंड सिस्टम। हमने तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। अब हमारा मेन फोकस जो होगा ना, लैटिट्यूड हम देखेंगे, ऑल्टीट्यूड हम देखेंगे, दे आर सिंपल वन, सिंपल साइड में आ जाते हैं। प्रेशर एंड विंड सिस्टम को हम देखेंगे जो थोड़ा टफर साइड पे आता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। जब आप आगे देखोगे डिफरेंट सीजन्स कैसे ऑकर होते हैं, तो आपको प्रेशर एंड विंड सिस्टम का बहुत ज़्यादा एक तरह से समझ में आने वाला है काम। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने सारे फैक्टर्स अभी समझाए नहीं है। हाँ, एक सेकेंड, ये क्लाइमेटिक कंट्रोल्स मैंने आपको देखिए लैटिट्यूड समझा दिया, ऑल्टीट्यूड समझा दिया, प्रेशर एंड विंड सिस्टम समझा दिया, डिस्टेंस फ्रॉम सी समझ में आ गया आपको कि जैसे जैसे हम पानी से दूर जाते जाते हैं तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन सबको मिलते हैं। तो फर्स्ट डायग्राम डन, सेकेंड डायग्राम डन, थर्ड डायग्राम डन, फोर्थ डायग्राम बच रहा है, ये वाला है आपका रिलीफ फीचर्स का। रिलीफ फीचर्स में क्या होता है, देखिए जो माउंटेन है, माउंटेन के पास कुछ क्लाउड्स आए, ये माउंटेन था, माउंटेन के पास पानी वाले क्लाउड्स है। अब ये जो क्लाउड्स हैं ये माउंटेन से टकरा गए, ये क्लाउड माउंटेन है, यहाँ ये माउंटेन्स हैं, ठीक है, और यहाँ मेरा आया क्लाउड, वो टकरा गया माउंटेन से। सो टकराने से वो पानी को ले जा रहे हैं। अब वो जो क्लाउड्स हैं वो फट गए, फूट गए, उनमें से पानी निकल गया, तो वो जो साइड है वहाँ पे पानी आ गया है, ठीक है। और जहाँ दूसरी साइड है
जहाँ पर केवल ड्राई एयर ही पहुँच पाए, क्योंकि माउंटेन्स ने एयर को अपनी तरफ रख लिया ना, तो एक तरफ बारिश होगी, दूसरी साइड बारिश नहीं हुई, तो माउंटेन की एक साइड तो बस बोलती है रेन शेडो साइड, जहाँ पे केवल बारिश होने की शेडो आ रही है, वहाँ पे रेन नहीं हो रही है, और एक साइड होती है जहाँ पे रेन होती है, जिसे बोलते हैं विंडवर्ड साइड। तो जहाँ रेन हो रही है वहाँ पे आप बोलते हो विंडवर्ड साइड, जहाँ नहीं हो रही सब लीवर्ड साइड। ओशन करंट, अब ओशन करंट क्या है, वार्म करंट और कोल्ड करंट। वार्म करंट क्या है, इसको बुक में भी लिखा हुआ है, ओशन करंट्स along with onshore wind affects the climate of coastal area. For example, any coastal area with warm or cold current flowing past it will be warm or cool if the winds are onshore. अब अगर पानी जो है, पानी के पानी गर्म है, पानी में हॉट वाटर करेंट्स चल रही है, इफ वाटर हैज हॉट वाटर करेंट देन जो विंड्स हैं वो भी गर्म होंगी, एंड अगर वो पानी जो है वो ठंडा है तो वो कूल वाटर करंट है, तो वहाँ की विंड्स भी ठंडी होंगी। तो जो आपके ऑनशोर एरियाज होते हैं या जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे एक विंड का इफेक्ट बहुत दिखता है, दैट इज ड्यू टू द ओशन करंट। गर्म या ठंडा, गर्म तब जब पानी गर्म है, ठंडा जब पानी ठंडा है, दैट इज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। ये हो गया, इसको मैंने बता दिया है इन जनरल। लैटिट्यूड पे आ जाते हैं इन डिटेल। नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपकी ये वाली, ठीक है, ये डिवाइड कर रही है इंडिया को इन दो इक्वल पार्ट में। जो अपर वाला पार्ट है, यानी जो ऊपर की तरफ है, ये वाला जो इलाका है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सब ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। और जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसे हम कहेंगे ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पार कर गया तो वो सब ट्रॉपिकल एरिया है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आ रहा है ना, वो ट्रॉपिकल एरिया है। अगर मैं आपको किसी में मैंने अगर मैप लगाया हो तो मैं आपको बता सकती हूँ, नहीं लगाया मैंने, मैं देखती हूँ अगर मैंने कहीं पे भी, ये हाँ इधर ही देख लो, ये है आपका इक्वेटर, तो ये जो है आपके ट्रॉपिकल एरियाज है, ठीक है। और इंडिया, अगर मैं इंडिया पे फोकस डालूँ, आप भी इंडिया पे मेरे साथ साथ फोकस डालो, मैं एक बार मैप को जल्दी से क्लियर कर लूँ। ये हाइलाइटर मैंने ले लिया है, तो यहाँ पर मेरा ये जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये है ट्रॉपिकल एरिया। क्या? क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आ रहा है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ रहा है, जिसे अभी मैं ग्रीन के साथ शो करने वाली हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ये वाला रीजन आ रहा है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो रीजन है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला रीजन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मान लो यहाँ से पास होती है, तो इसके ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है सब ट्रॉपिकल, इसे हम सब ट्रॉपिकल कह देते हैं। और जो नीचे वाला ये रीजन आता है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल। तो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला रीजन जो इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है वो है ट्रॉपिकल रीजन, और इंडिया के इधर वाला जो ऊपर आ जाता है वो हो जाता है सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। फाइन। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू रन ऑफ कच्छ है आपका गुजरात में, इन वेस्ट to Mizoram in the east divides the country into almost 2 equal part। तो अगर मैं वेस्ट में बात करूँ so we have run of Kutch there, and अगर मैं ईस्ट में बात करूँ so there we have मिजोरम ना, so वहाँ पे आपका ये पास होता है, ये मतलब रन ऑफ कच्छ से जाता हुआ ये ईस्ट तक मिजोरम में जाता है, और ये डिवाइड करता है कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड्स द कंट्री, राइट।
मैं इरेज और इंक भी कर सकती हूँ अभी। अगर हम नदर्न हाफ ऑफ द कंट्री की बात करें, इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल एरिया। सब ट्रॉपिकल एरिया है वो, सब ट्रॉपिकल एरिया, नदर्न हाफ ऑफ द कंट्री। साउदर्न हाफ ऑफ द कंट्री को हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया, जिसको अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो ये जो मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसका ये वाला येलो वाला शेडेड जो एरिया है, इससे मैं कहूँगी सब ट्रॉपिकल। और मैं नीचे वाले को कहूँगी ट्रॉपिकल रीजन। तो एक तो गया मेरा सब ट्रॉपिकल और एक हो गया ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो इंडिया में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट है। अब ये क्या कहेंगे भी नया क्लाइमेट आ गया? नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को अगर मैं ऐड कर दूँ तो हमारे पास मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बनता है जो इंडिया का है। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज ऑल्टीट्यूड। मैं बोल रही थी ना बहुत लेंथी चैप्टर हो रहा है। इफ यू आर एग्जॉस्टेड, जस्ट डू वन थिंग, पॉज ले लो। ठीक है, मैं देखती हूँ कितने मिनट्स का मैं बना चुकी हूँ। ऑल्दो अभी हम बना ही लेते हैं, आगे कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑल्टीट्यूड क्या है? इंडिया हैज़ माउंटेन्स। इंडिया में क्या है? इंडिया में है माउंटेन्स। इंडिया में जो माउंटेन्स है, अगर हम नॉर्थ में बात करें तो दे आर हिमालयन माउंटेन्स एंड देयर मैक्सिमम हाइट इज 6000 मीटर्स। ठीक है, अब मैक्सिमम भी नहीं, आई थिंक ये आपकी मैक्सिमम हाइट नहीं बोली गई है, एवरेज हाइट बोली गई है। मैक्सिमम हाइट तो आपके माउंट एवरेस्ट की 8000 समथिंग कुछ ऐसे है ना। सो दे एक्ट एज बैरियर्स एंड डज नॉट अलाउ cold winds flow from Central Asia into the India. In south we have mountains with maximum height of 30 meters. अच्छा, अब कंसेप्ट ये आता है कि कैसे ये रोकते हैं या कैसे ये बैरियर की तरह एक्ट करते हैं जो नदन में आपके हिमालयन माउंटेन्स है। देखिए, ये है आपके माउंटेन्स जिन्हें मैं बोलती हूँ दैट दे आर आपके माउंटेन्स। कौन से वाले हो गए? हिमालयास। यहाँ पे है हमारा इंडिया, ये है इंडिया, ये इंडिया है। ये है आपकी, ये है आपका सेंट्रल एशिया। ठीक है, सेंट्रल एशिया। ठीक है, अब जब हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है लैंड में, देखो क्या हुआ, विंटर्स आई तो विंटर्स में लैंड जल्दी से ठंडा हो गया, पानी ने टाइम लिया। तो आपका जो सेंट्रल एशिया है या आपका जो पूरा एशिया है ना, वहाँ पे बहुत कम सीज आपको मिलेंगी। तो वहाँ पे सेंट्रल एशिया में स्पेसिफिकली बहुत हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया और आपके इंडिया को पार करके सीज आ जाएंगे। इंडिया को पार करके सीज आ गए क्योंकि इंडिया एकदम साउथ में, उसके नीचे सीज आ गए। तो सेंट्रल एशिया से निकलती हुई कई ठंडी हवाएं हैं जो कि इंडिया को पार करके ओशंस में या सीज में मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी लो प्रेशर है हल्का। तो अब ये सेंट्रल एशिया से जो बहुत ठंडी हवाएं आती हैं, बहुत चिल्ड विंड्स होती हैं जो यहाँ पे बर्फ़ भी ला सकती हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ये जो हिमालयाज होते हैं ये इतनी ठंडी विंड्स को एंटर नहीं होने देते इंडिया में। दैट इज़ वाई इंडिया में कभी बहुत ठंडी ठंड नहीं पड़ती है। पड़ेगी भी तो वो बेचारे हिमालयाज के रीजन में पड़ेगी, उनको झेलनी पड़ेगी। सो अगर हम साउथ में बात करें, हमारे पास जो मैक्सिमम एलिवेशन है वो 30 मीटर्स के साउथ में हमारे जो डेक्कन प्लेटू है वहाँ पे कुछ प्लेट्यूज या माउंटेन्स आ जाते हैं। प्रेशर एंड विंड सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। ठीक है, फिर आता है अपर एयर सर्कुलेशन और आता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस मैं लूँगी पार्ट 2 में, क्योंकि अभी मेरे को ये इसकी स्लाइड्स भी रेडी नहीं की हैं, तो अभी हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। एक सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड देखती हूँ। प्रेशर एंड सरफेस विंड्स और अपर एयर सर्कुलेशन। सो प्रेशर एंड सरफेस विंड्स यानी कि वो विंड्स जो सरफेस पे ब्लो कर रही हैं, अपर एयर सर्कुलेशन या जो ऊपर की तरफ ब्लो कर रही हैं। ठीक है, अब मैं प्रेशर एंड सरफेस विंड्स की अगर बात करती हूँ
सो सबसे पहले हमको ये देखना है कि अब इस वाले मैप को आपको अच्छे से रीड करना होगा। ITCZ क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे कुछ टॉप पे मैंने डायरेक्शंस लिखी हुई हैं, इन डायरेक्शंस को हम रीड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉम्पैक्ट टाइट वाला टॉपिक शुरू हो रहा है, यू हैव टू पे अटेंशन। यहाँ पर अब सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है दैट इंडिया लाइज इन रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। In winters, these winds originate from subtropical high pressure belt of northern hemisphere. They blow southwards, get deflected to right due to the Coriolis force and moves towards the equatorial low pressure area. इंडिया हमारा नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स की तरफ लाई कर रहा है। सबसे पहले तो ये बात आती है कि नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स कौन सी हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हमने बोल दिया ये नॉर्थ इंडिया है। जो नॉर्थ इंडिया है इसको हम सब ट्रॉपिकल इंडिया भी कहते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स क्या होता है, विंटर्स के समय पर जो लैंड है इट्स लेजी। तो अभी अभी समर्स गुजरे हैं, लैंड लेजी नहीं है, सॉरी वाटर इज लेजी। तो अभी अभी समर गुजरे हैं, वाटर को समझ नहीं आया कि सर्दियां आ गई हैं। वो जल्दी जल्दी ठंडा नहीं होगा, वो धीरे धीरे ठंडा होगा क्योंकि वाटर इज लेजी, है ना। लैंड क्विकली कूल्स अप, तो लैंड जल्दी से ठंडा हो गया। वाटर को समझ नहीं आया अभी अभी की तो सर्दियाँ आ गई हैं, लेकिन वो अभी गर्म ही है क्योंकि अभी अभी सर्दियाँ गुजरी हैं, गर्मियाँ गुजरी हैं, सॉरी। देखो दो बातें मैंने कही कि अभी अभी गर्मियाँ गुजरी हैं, सर्दियाँ आई हैं। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये विंटर्स में जो लैंड है वो जल्दी ठंडा हो गया, लेकिन पानी को अभी समझ नहीं आया कि हाउ व्हाट हैपेंड। उसने लेट पढ़ाई शुरू करी, यानी अब वो गर्म है हल्का सा और हल्का सा ठंडा है, मॉडरेट है, लेकिन लैंड इज एक्सट्रीमली कोल्ड। लैंड पे क्रिएट हो चुका है हाई प्रेशर, लैंड पे क्रिएट हो चुका है हाई प्रेशर और वाटर में क्रिएट हो चुका है लो प्रेशर, लो प्रेशर, ठीक है। वाटर में क्रिएट हो चुका है लो प्रेशर क्योंकि वाटर को समझ नहीं आया था कि उसे ठंडा होना है, वो अभी थोड़ा गर्म है। लैंड वॉज क्लेवर, उसको जल्दी समझ में आ गया कि उसे ठंडा होना है, वो बहुत जल्दी ठंडा हो गया। तो लैंड में क्रिएट हुआ हाई प्रेशर, वाटर में क्रिएट हुआ लो प्रेशर। अब ये जो लैंड है, ये लैंड है क्या, ये लैंड है आपका एशिया का रीजन। और ये एशिया का रीजन दरअसल क्या है, एशिया का रीजन इज एट द नॉर्थ ऑफ द सी। अगर मैं सीज की बात करूं तो यहाँ एशिया है आपका, मान लो ये एशिया है पूरा, ये एशिया है पूरा। एशिया के जो साउथ है वहाँ पे आते हैं सीज, तो एशिया के साउथ में है सीज, एशिया नॉर्थ में आता है सीज के और एशिया के साउथ पे आते हैं सीज। तो अब जो हवाएं आएंगी वो कहाँ से आएंगी, हवाएं आएंगी नॉर्थ से। नॉर्थ से वो आएंगी कहाँ पे, नॉर्थ से वो आएंगी आपके साउथ में। साउथ में क्या है, सीज है, ओशंस है, उन्हें वो क्या देंगी, उनका प्रेशर वो बढ़ाएंगी। हुआ क्या, दो चीज़ें, हाई प्रेशर लैंड पे, लो प्रेशर वाटर में। नाउ एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर मूव करेंगी, यानी कि एयर विल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, हेयर टू हेयर, ठीक है। तो ये नॉर्थ से आ रही है। अब नॉर्थ से कहाँ जा रही हैं, दे आर गोइंग टू द साउथ। सो ये जहाँ से आती हैं हम वहाँ से विंड का नाम रखते हैं। हम इसके लिए ट्रिक को भी यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे नॉर्थ, नॉर्थ नहीं है, डब्ल्यू लग रहा है, यहाँ पे आप डालो नॉर्थ, यहाँ डालो साउथ, यहाँ डालो ईस्ट, यहाँ डालते हैं वेस्ट। अब ये जो विंड्स है ये कहाँ से आ रही हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, वो नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। जिस तरफ टेल होएगी ना, अभी ये ऐसे आ रही हैं, जो टेल इस तरफ है, टेल इस तरफ है, ये टेल है।
सो जिस तरफ टेल होती है हम उस तरफ से नाम डालते हैं, नॉर्थ ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं। एंड एक्चुअली होता क्या है कि फोर्स होता है कोरोलिसिस फोर्स। ये जो कोरोलिसिस फोर्स होता है इसमें क्या होता है कि जो विंड है, हवाएं हैं, अगर वो नॉर्दर्न इक्वेटर के नॉर्थ से आ रही हैं, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आ रही हैं, सो वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी। और अगर वो कहाँ से आ रही हैं, यहाँ पे इमेज भी है, अगर वो आ रही हैं साउथ से, अगर वो इक्वेटर के साउथ से आ रही हैं, so they are going to deflect towards the, yes, they are going to deflect towards the left। ठीक है, साउथ से आई तो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, नॉर्थ से आई तो साउथ की लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी। आप इस मैप में इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख सकते हो। इधर यू हैव लैंड हेयर, यहाँ पे क्रिएट हुआ है हाई प्रेशर, यहाँ पे है लो प्रेशर। सो एयर कहाँ से कहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ आएंगी। और एज यू कैन सी इनका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट से देखो तो टेल इस तरफ है, टेल इस तरफ है, तो इसको हम नाम दे देंगे नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। ये है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। सो इंडिया लाइज इन रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। इन विंटर ये जो विंड्स हैं ओरिजिनेट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कौन सी हो गई, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ऊपर वाली, तो वहाँ पे आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो चुका है क्योंकि वहाँ पे लैंड बहुत कम है, लैंड ज़्यादा है, वाटर बॉडीज़ कम है। तो सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लैंड बहुत ज़्यादा है, वाटर बॉडीज़ कम है, वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है। ठीक है, इन विंटर्स। अब ये जो हवाएं हैं दे ब्लो साउथवर्ड, ये साउथ की तरफ जाएंगी। एंड जैसे जैसे ये साउथ की तरफ जा रही होती है ना, दरअसल एक कोरोलिसिस फोर्स लग रही होती है जिस वजह से ये राइट की तरफ हो जाती हैं। ये ऐसे सीधा नहीं आ पाती, ये राइट की तरफ हो जाती हैं। और जैसे ये हल्का सा राइट की तरफ हो जाती हैं, अगर हम देखें तो ये नॉर्थ ईस्टर्ली हिस्से में पड़ जाती हैं। हुआ क्या कि ये तो सीधे सीधे आ रही थी बेचारी, इनको तो कुछ नहीं था, सीधे सीधे आ रही थी ये हवाएं। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही थी, लेकिन कोरोलिसिस फोर्स लगा और ये हो गई कुछ ऐसे टेढ़ी हुई। अब जैसे ये टेढ़ी हुई तो हमने देखा कि ये कौन से डायरेक्शन में पड़ी, फिर ये नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में पड़ी। दे वर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बट ड्यू टू कोरोलिसिस फोर्स दे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट एंड दे वर कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स अकॉर्डिंग टू द टेल। हमने देखा ये कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हवाएं यहाँ से यहाँ आ रही थी जनरल फॉर्म में, बट कोरोलिसिस फोर्स क्या करता है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये नॉर्थ से साउथ जो हवाएं चल रही होती हैं सीधी सीधी, अगर वो नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो वो उनको राइट की तरफ हल्का डिफ्लेक्ट करता है, सदर्न हेमिस्फीयर से आ रही है तो साउथ की तरफ, मतलब लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। तो ये हवाएं नॉर्थ से आ रही थी साउथ में, तो ये क्या हुआ, हल्का सा डिफ्लेक्शन हुआ राइट की तरफ, ये हवाएं राइट की तरफ ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। एंड यहाँ पर ये बन जाता है हमारा टेल को अगर हम देखें तो इट इज योर नॉर्थ ईस्टर्ली साइड। ठीक है, सो ये जो विंड्स है कैरी लिटिल मॉइस्चर, बिल्कुल कम मॉइस्चर है क्योंकि लैंड से आ रही हैं। एज दे आर ओरिजिनेटिंग एंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड दे ब्रिंग नो लिटिल और यू कैन से नो रेन। सो इन समर लो प्रेशर कहाँ क्रिएट होता है, इंटीरियर एशिया में, और हाई प्रेशर क्रिएट होता है साउदर्न ओशन में। देखो लो प्रेशर कहाँ पे क्रिएट हुआ, इंटीरियर एशिया में, हाई प्रेशर कहाँ क्रिएट हुआ, सदर्न एशिया में। कैसे, लैंड जल्दी से गर्म हो गया, लेकिन वाटर तो अभी पूरा ठंडा ही नहीं हुआ था, वो तो ऑलमोस्ट थोड़ा गर्म था। वो लैंड इन कंपैरिजन विद वाटर अभी ठंडा है। देखो इसको भी इसे ढंग से समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे हुआ हमारे साथ क्या कि ये है आपका लैंड, समर्स में हम बात कर रहे हैं, ये है हमारा लैंड। लैंड में, यहाँ लैंड में लो प्रेशर क्रिएट हुआ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। पानी तो मॉडरेटिंग इफेक्ट शो करता है, तो अभी यहाँ पे हल्का सा इन कंपैरिजन विद लैंड हाई प्रेशर है। इन दिस केस साउथ से जो पानी है वो जा रहा है नॉर्थ की तरफ। ठीक है,
साउथ से जो पानी है वो जा रहा है नॉर्थ की तरफ। साउथ से, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ। साउथ में तो पानी है भी बहुत सारा, तो साउथ में तो पानी अभी हाई प्रेशर वाली कंडीशन में है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हवाएं जाएंगी यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, साउथ से नॉर्थ पर। अब जब ये साउथ से नॉर्थ में जा रही होंगी तो ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगी। लैंड पे पहुंचने के लिए इक्वेटर है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। सो हमें ये पता है कि कोरोलिसिस फोर्स की वजह से जो साउथ में विंड है वो राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। सो ये हमारे साउथ में ब्लो कर रही थी और दे वर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट, बट एज दे क्रॉस द इक्वेटर वो आ गई नॉर्थ वाले इलाके में, वो आ गई नॉर्थ वाले इलाके में। और जैसे वो नॉर्थ के इलाके में आई, सो दे गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द राइट। और अब हमने जैसे वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, हमने देखा कि ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। तो ये साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स कहलाई। आई तो थी ये साउथ से, एकदम साउथ से आई थी, साउथ ईस्ट से आई थी बेसिकली ये, ठीक है। बट ड्यू टू द कोरोलिसिस फोर्स दे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड देन दे वर कॉल्ड एज साउथ वेस्टर्ली विंड्स। इनको हमने साउथ वेस्टर्ली विंड्स बोला, ठीक है। अब ये आ रही हैं पानी से लैंड की तरफ, तो ये लेके आ रही है बहुत सारा मॉइस्चर। इसी वजह से समर्स में जब बहुत सारी बारिश होती है हमारे पास, क्योंकि जो हवाएं हैं वो कहाँ से ब्लो करते हुए आ रही है, फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये एक चिपका रखा है आपके लिए, यहाँ पे इसको आप रीड कर सकते हो, ठीक है। इसको हम आगे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने समझाया है कोरोलिसिस फोर्स। मैंने दो ले ली हैं पिक्चर्स, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो कोरोलिसिस फोर्स क्या है, ड्यू टू द कावेचर ऑफ द अर्थ। अर्थ क्या है, कावेचर फॉर्म में है ना, ठीक है। सो ड्यू टू द अर्थ्स रोटेशन, रोटेशन की वजह से आपके क्या होता है, कोरोलिसिस फोर्स होता है। ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट्स टू द राइट, एक सेकेंड, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, दे डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द राइट, इन सदर्न हेमिस्फीयर दे डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है, हो गया। अब आता है अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन क्या है, देखो इसको अपन और अच्छे से इधर समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब गर्मी होती है, मतलब ये लैंड है आपका, यहाँ पर हॉट एयर है, एक यह आता है आपका हॉट एयर। यहाँ पे मैं ना इधर लिख देती हूँ हॉट एयर, ठीक है, ये हॉट एयर है। यहाँ पे है 4-5 चम्मच है ना, सारे बच्चे वहां रख देते हैं, 4-5-10 चम्मच है, यहाँ पे है कोल्ड एयर। तो अब जो हॉट एयर है ये हॉट एयर राइजेज अप। अब जब हॉट एयर राइज हो जाती है तो ग्राउंड लेवल पे बन जाता है हमारा लो प्रेशर, ठीक है। और कोल्ड एयर की बात करें तो यहाँ पे एयर तो सिंक हो गई है, तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे बन जाता है हाई प्रेशर। बट क्या सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे हो रही हैं? नो, कुछ चीज़ें अपर लेवल पे भी हो रही हैं। अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर की तरफ में हॉट एयर ने बनाया है हाई प्रेशर, क्योंकि वो ऊपर की तरफ राइज हुई है ना, और कोल्ड एयर ने बनाया है ऊपर की तरफ लो प्रेशर। इन दिस केस एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देखो इसको फिर हम एक अच्छे से साइकिल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे था लैंड, ठीक है, यहाँ पे आपका बना लो प्रेशर क्योंकि ये है आपकी हॉट एयर, और यहाँ पे बना आपका हाई प्रेशर इन द ग्राउंड क्योंकि यहाँ पे है आपकी कोल्ड एयर, ठीक है।
अब ये जो एयर थी लो प्रेशर वाली वो ऊपर उठी और उसने ऊपर की तरफ इकट्ठा होकर के बनाया हाई प्रेशर, वेयर एज ये तो नीचे सिंक डाउन थी ऑलरेडी, यहाँ पे इसने वैक्यूम क्रिएट किया, यहाँ पे इसने बनाया लो प्रेशर। सो इन दिस केस अगेन हाई प्रेशर से एयर लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, सो इन दैट केस एयर विल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो यहाँ से हाई प्रेशर से एयर यहाँ गई, ठीक है, यहाँ से ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद ये इधर की तरफ आई लो प्रेशर की तरफ से। सो ये पूरा साइकिल बनता है, ये पूरा एक साइकिल बनता है। सो दिस ब्रिंग्स मी टू session. Now I'm going to end the class here. So thank you. Bye bye. Watch you again. Bye.